स्टार्टअप आइडिया को इवैल्यूएट करने के अक्सर 3 तरीके होते हैं। आप इंटरनेट पे मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, अपने साथियों से पूछ सकते हैं और तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका आप परेश सर से पूछ सकते हैं। Okay. Good afternoon, sir. Hi. Welcome to Naveen Chatya Talks podcast. Hello. And सर के बारे में अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो आपको पूरी स्क्रिप्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लिस्ट देख के बैठेंगे तो सर ने मतलब अनपेकेबल अचीवमेंट्स है सर के पास। सर SRCC के एलुमनाई हैं, सर ने 8 टाइम स्टैटिक स्पीकर रह चुके हैं, सर 2 टाइम ज़ोस्टॉक स्पीकर रह चुके हैं। एंड लिस्ट इतनी ही लंबी है कि सर अगर आप खुद बताना चाहें तो आप खुद भी बता सकते हैं। देखो, मैं एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, एक स्ट्रगलिंग मेंटर और टीचर हूँ और एक हैप्पी सोल हूँ। And I think that's all that I can talk about myself. There are a lot of things which I think a lot of people do it यार। मतलब मेरे को लगता है कि कोई ऐसे extraordinary achievements है नहीं। Anybody can Google it out and officially देखना है तो LinkedIn profile देख लो। But I think what is more important is that I have always believed in trying to look at myself and I've always believed in finding my own soul. So वो एक journey है जो मैं हमेशा अपने आप को push करते रहता हूँ। उसमें बहुत सारे ups and downs आते हैं और उससे I become maturer every time, and I think that's what I can say for myself, that I've tried my hands on a variety of things, I've explored a lot of things, and that makes me a little more experienced in trying new things. That's all. तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई सर फिर? यार जर्नी ना मतलब आई थिंक जब आप पैदा होते तब से और वो क्रेजी जर्नी होती है जिसमें people start giving you weird experiences, and I think I had my share of weird experiences right from early childhood, but मतलब my father always had a transferable job, तो हम कॉन्स्टेंटली ना जगह स्विच करते रहते थे। तो मतलब एक शहर में 2 साल, फिर दूसरे शहर 2 साल। So every time I would switch a school, I would have new friends, new people, and every environment was so different. फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल में पढ़ा जिसके अंदर वो 100% कैथलिक स्कूल था जो 100% इंग्लिश स्पीकिंग था, और सडनली वहां से मैं एक दूसरे शहर में चला गया जहां पे कोई क्लास में इंग्लिश ही नहीं बोलता है, एंड देन यू सडनली गो टू अनदर प्लेस वेयर एवरीबॉडी इज वेरी रिच, एंड देन यू गो टू अनदर स्कूल वेयर एवरीबॉडी इज नॉट सो रिच, and all of these cities, all of these places have their own different ethos and different environments. So I think वहां से लाइफ शुरू होती है, but ultimately इस सब में I took a toll on myself. So मतलब literally ऐसा हुआ कि after a point I could not adjust to so much of changes, and that's what led to a lot of issues in my life. So वो जो situation थी वो ऐसी थी कि मैं एक नए स्कूल में गया, सडनली मैं जैसे प्रीवियस स्कूल में था वैसे एक्ट करने लगा तो वहां पे सब मजाक उड़ाने लगे। It was very weird, for example, to see somebody laughing at me speaking in English, or trying to play a musical instrument, I mean, so people don't accept it so easily because it's not their environment. आप suddenly, for example, Kishangarh में आप जाते हो, Kishangarh is like a very small town, and suddenly you come from a big city and you go and say, okay, playing sitar is all right, and it's cool, right? But there everybody starts laughing at you कि ये तो लड़कियों का इंस्ट्रूमेंट है। I mean, people don't understand कि सितार के बेस्ट प्लेयर तो रविशंकर और अल्लाह रखा है, right? So this has nothing to do with gender, but it is just the mindset that people bring to the table. So वहाँ से so वहाँ से वो story शुरू होती है जहाँ पे people started laughing at me, people had problems with me speaking in English, people had problems with me living life differently, experimenting on a lot of things. Then they started bullying me, then they started physically hitting me, then they started torturing me, in a lot of ways to abuse me, and I started losing life. So मतलब वो एक phase था मेरी life का जब it was not such a great phase of life, to be honest. तो सर बचपन से सबको कुछ ना कुछ करना होता है, सबका ही होता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे बड़े होके ये बनना है, तो आपका कुछ क्लियर था कि मुझे ये बनना है बड़े होके? वो बहुत कुछ बनना था। जब मैं छोटा था तो I first wanted to be a doctor, and I thought डॉक्टर बन जाएंगे। फिर डॉक्टर बनने के अच्छा I never used to like maths, to be honest, and I'm now a finance expert, so थोड़ा weird है, but as a kid I was always fascinated with drawing and painting. तो मुझे लगता है बायोलॉजी बड़ी अच्छी है because उसमें खूब सारी ड्राइंग होती है, कलर करने मिलता था। उसने कहा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, I love to color, so doing that. Then I learned music, so then I thought musician बन जाएंगे, so then I thought I'll become a stage musician and a sitar player as a career.
फिर उसके बाद so I had all these career passions, the weirdest of thoughts, you know, मेरे को कभी लगता था मैं ड्राइवर बन जाऊंगा. ये तो मेरा भी सपना था. मेरे लिए सपना था कि मैं फायर ब्रिगेड में So certainly it was never fixed. Commerce happened very incidentally. So in fact 10th standard में I topped my I was one of the toppers in the class. और मेरे डैड ने बोला क्या करना है, राइट? सो वन डिसीजन वाज कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आप कोटा जाओगे, अगर आप बायोलॉजी लोगे तो आपको बहुत सारे साल पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स लोगे तो कम पढ़ाई में आसानी से निकल जाएगा. सो आई वाज लाइक यार कॉमर्स ले लेते, कम पढ़ना पड़ेगा. सारी कॉमर्स वाली ऑडियंस रिलेट कर सकते हैं. हाँ मतलब यू गाइस कैन नहीं, कॉमर्स वाले बच्चे पता है कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मुझे साइंस नहीं पढ़नी इसलिए मैं कॉमर्स लूंगा. कॉमर्स के बारे में किसी को पता नहीं होता. मतलब when you are in 10th standard you have no idea what's going to come in commerce, but you take commerce because you don't want to study science. It's like a negative list आंसर निकल गया. क्योंकि आपको पता होता है साइंस में क्या पढ़ने वाला है. साइंस में क्या पढ़ना हो तो बचपन से पढ़ रहे होते, so you know that, but commerce you don't know. So I also took commerce with this thought process कि science, अच्छा my sister had taken science and she used to study so much that I was like इतना कौन पढ़ेगा यार, मतलब this is too much to study. I want to enjoy my school days. I want to at least play my sitar and do my music and do my, you know, painting and drama and all that. So I took commerce just to have fun, and that was my decision criteria at that stage. But it worked out very well. So उसका एक strategy जो मुझे आज समझ आता है, it's always good to connect the dots backwards, is कि it, you know, I have this strategy called अंधों में काना राजा. Okay. और वो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी है. मैंने कॉमर्स ली, मेरी क्लास के सारे टॉपर बच्चे चले गए साइंस में, मैं अकेला कॉमर्स में. मेरे लिए कॉमर्स टॉप करना वाज सो इजी. बट कब तो सबको बराबर मिलता है, ट्रॉफी तो सबको बराबर मिलती है, बाद में फोटो भी सबकी बराबर आती है. तो कॉमर्स का टॉपर, साइंस का टॉपर, ह्यूमैनिटीज का टॉपर सब बराबर है. बट इट इज मच इजियर टू टॉप इन कॉमर्स. सो आई लिटरली टुक इट लाइक दैट, एंड दैट इज हाउ द जर्नी वेंट वेल. हाँ, जब आप लेटर स्टेज में जाते हो then all competitive exam become common, and then you are at the same base. But at that early stage, commerce always worked well as अंधों में काना राजा. मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपकी क्लास में क्या होता होगा, क्योंकि आपके दोस्तों को तो उनकी मम्मियाँ भी बोलती होंगी कि गुप्ता जी की लड़की को देख वो तो टॉप कर. अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. I mean, I swear on God, मैं तो मतलब I was that teacher's pet and मम्मी पापा's pet, एकदम सीधा सच्चा वाला लड़का, और दुनिया नफरत करती थी मेरे से. मतलब मेरी पूरी क्लास मुझसे नफरत करती थी, बिकॉज आई वुड बी द मैन सिटिंग ऑन फर्स्ट रो, फर्स्ट बेंच, राइट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, आंसरिंग ऑल क्वेश्चन, टॉपर स्टूडेंट. एंड अगर पूरी क्लास बंक मारती थी तो भी मैं अकेला क्लास में जाकर बोलता था मैम पूरी क्लास यहां बंक मारी, जाके पकड़ लो, मैं आके पढ़ने आया हूं. मतलब आई वाज लाइक रियली बैड. सॉरी, नेवर डू दिस गाइस, ट्रस्ट मी. आई लर्न माय लेसन्स मच लेटर की दुनिया में ना लोग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं केवल पढ़ाई पे फोकस था. सो हाँ, ये तो गुप्ता जी का लड़का वाला स्टोरी बहुत है मेरी लाइफ में. सो और फिर जितना मैंने देखा है आजकल बहुत लोग होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर. लाइक 11th-12th में भी लोगों को पता नहीं होता कि मेरे को ये करना है, बस वो अपने मम्मा पापा की गाइडेंस में या कोई भी जैसे बोल देता है उनको तो वो वैसे शिफ्ट हो जाते हैं. ट्रू. तो व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? यार देखो, उससे पहले मैं तुमको बताऊं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना मम्मी पापा के साथ है, क्योंकि आज के मम्मी पापा को लिटरली पता ही नहीं कि फ्यूचर में होने वाला क्या है, और दुनिया इतनी बदल चुकी है ना. व्हेन आई मीट, मेरे लिए आई विल वेरी ऑनेस्ट that I know my younger students or younger ones know more career options than their own parents, and that is a bigger problem for them to convince their parents कि मैं ये करना चाहता हूँ. I'll give you an example. मेरा एक फ्रेंड है, वो विजुअल मर्चेंडाइजर है ना. विजुअल मर्चेंडाइजर एज अ करियर मैं किसी पेरेंट को पिच करूंगा ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा होगा क्या, एंड द पेरेंट्स से ये क्या बकवास है, right? But when I literally look at children, they have these aspirations. Somebody wants to become a dermatologist and it's a great idea. But what is to be done to become and can you become a dermatologist without taking science? Probably you might say no. My answer is yes, you can. And today a multidisciplinary education allows you to do this. Can you become a pilot taking commerce? My answer is again yes. You can do that, and I have students who are doing this. So question is, parents को भी नहीं मालूम और बच्चों को भी नहीं मालूम, और इसका एक्सप्लोरेशन भी वो शुरू करते हैं 12th क्लास 11th क्लास के बाद. एंड द आंसर एंड द राइट आंसर टुडे टू थिंक अबाउट योर करियर शुड स्टार्ट एट 6th grade, एंड अ डिसीजन, अ क्लोजर डिसीजन शुड बी मेड अराउंड 9th grade, and 10th grade onwards you should start working towards it. And that is how the world is looking at today.
इट्स सो कॉम्पिटिटिव कि आप अगर गोल्फर भी बनना चाहते हो, सो गोल्फर बनने की उम्र 18 साल के बाद नहीं शुरू होती, इट बिगिंस एट 12-13 and you start playing golf right now. I know sports is a great career. For example, I just met one person, unka beta is a sprints runner. They decided to let him go out of the school, do homeschooling from 8th grade to make him a world level sprints person now. So आपको ये सब प्लानिंग इतनी जल्दी करनी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है गाइडेंस बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को 6th, 7th, 8th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, ट्रस्ट मी, दे शुड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू वैरायटी ऑफ थिंग्स, go into various competitions, sense and get the pulse of those children, you know, very important to see, अच्छा इसका maths aptitude है, इसका English aptitude है, इसकी creativity ज्यादा है, इसका sports aptitude है, इसका कौन सा वाला aptitude है, go for all the tests, go for all the evaluations, go for all variety of competitions. आप startup competition में डालो, 2 startup ideas पे काम कराओ, innovative activities कराओ, robotics सिखाओ, you know, aeronautical engineering पे explore कराओ, painting सिखाओ, dancing सिखाओ, see where is your child excelling, and based on that you should take a decision कि यार ये मेरे बच्चे के लिए line path draw करनी शुरू करनी है, create those areas for that child, and 8th, 9th onwards you should start putting that child into that thought process कि तेरे को करना है तो सोच, you know, start thinking, planning, start working on it. 9, 10 पे बोर्ड्स तक ठीक है, एक्सप्लोर करते रहो. So 10th, so imagine only when you get 3-4 years of exploration. Exploration also has 3 tiers. पहला टियर है गूगल सर्च. हमारे बच्चे करते नहीं. हमारे बच्चे ये सुनी सुनाई वाली बातों का ही प्रॉब्लम है, यही रिजल्टेंट है कि you know we get to realize it much later कि हमारा सोल तो ये था. Right. So what is important is you guys should do a lot of Google search. You guys should, you know, be on Google every day and not the nonsense search, but you know, productive search. हर दिन एक TED Talk सुनो. Right. TED Talk is the most intelligent talk possible that you can hear. So उस TED Talk को सुन के मैं आज तक सुनता हूँ, पता है. एंड हर दिन मैंने रूल बना रखा है 15 मिनट की टॉक होती है यार, हर दिन के 15 मिनट इज सो वैल्यूएबल. कार में गाड़ी चलाते चलाते यार टॉक ही लगानी है, देखने की भी जरूरत नहीं है. लिटरली you can just put it like a podcast, listen to it like a sensible area. Oh, I like this, this is one thought, this is one thought, variety of thoughts there. One is this. Number 2, then you meet people, network, और बच्चों को मिलवाओ. So I ensure, my daughter is in 6th grade and I ensure that I take her to various forums, take her to various events where she gets to meet people with those thoughts. भाई आप अगर 5 प्रोफेशनल से मिलोगे, देखोगे, तो ही तो समझ आएगा हाँ मेरे को डॉक्टर जैसी जिंदगी चाहिए भी कि नहीं. I mean, think about my stupidity कि मैं ड्राइंग देख करके डॉक्टर बनना चाहता था. मैं जब असली जिंदगी में आज देखता हूँ मुझे लगता नहीं यार मैं नहीं कर सकता इतने सारे ऑपरेशंस एंड सूचर्स एंड एवरीथिंग. दैट्स नॉट मी एज अ पर्सन, राइट. सो वो बच्चा जब तक देखेगा नहीं तब तक दे कांट प्लान दिस आउट. सो दे हैव टू देन डू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो सर लाइक जैसे पेरेंट्स होते हैं आजकल, वो अपने बच्चों को है ना अदर फील्ड्स एक्सप्लोर करवाते ही नहीं है, और उनका ऐसे कि अगर वो खुद जॉब कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी जॉब वाली फील्ड में ही डालेंगे, सर्विस सेक्टर में ही डालेंगे, या फिर किसी का फैमिली बिजनेस है तो वो खुद के बिजनेस में ही अपने बच्चों को लगाना चाहते हैं. तो लाइक बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लग रहे हैं और बच्चे करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे. तो आप उसके लिए क्या ओपिनियन? सो मेरे पास ना आई वांट you know there are 2 sides of the story. Okay, one is the parents perspective, one is the child's perspective. पहली चीज तो तुम्हें जितने restrictions आज देखने मिल रहे हैं हमारी जनरेशन का सोचो. Right, so you guys are still Gen Zs who are probably getting way more than what millennials or Gen X got. So for our life it was like a government job and that's the only world you know we ever had, and that was the only thing that was taught to us. या फिर business है तो भाई धंधे पे लग जा, यही business है हमारा. बट आज की डेट में तुम्हें फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं. हाउएवर आई डू फील दैट पेरेंट्स आर नॉट एज एजुकेटेड एंड अपडेटेड एज दे शुड बी अबाउट वैरायटी ऑफ थिंग्स, एंड द वर्ल्ड हैज बिकम दैट कॉम्प्लेक्स you know, and I want to give you those examples कि इतने सारे वैरायटी ऑफ करियर्स हैं आज की डेट में जो कि हमें पता ही नहीं, राइट. एंड पेरेंट्स को भी पता नहीं, और अगर पेरेंट्स को पता नहीं होगा और वो अपने बच्चे को केवल अपने यूनिडायरेक्शन की वजह से उधर पर्टिकुलर फील्ड में डालेंगे तो उसका फल उनके बच्चे भुगतेंगे. Right, and that's a true situation. फिर वो 30 की उम्र में जाकर के 25-40 की उम्र में जाकर के करियर स्विच करते हैं, फिर वो रीस्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं. So look at you know people like us. तो ये जो स्टोरी है ना कि पहले करियर बना लो, फिर जॉब कर लो, फिर बिजनेस करना. How stupid is that? I find it very stupid because I had lost 15 years of my life. Right, I started much later. I started at the age of 30. So मैं वो जल्दी भी कर सकता था ना लाइफ में. एंड बिजनेस का क्राफ्ट जब से शुरू होगा तभी से शुरू होगा. And
30 की उम्र में बिजनेस शुरू करना वर्सेस 20 पे शुरू करने में बहुत फर्क है. The risk appetite for a 20-year-old versus the risk appetite of a 30-year-old are two different stories. So I had a family, I had a kid, and I had to still plan a business, and it was a difficult thing for me. So ये पेरेंट्स की ही वजह से होता है कि आप वो चीजें नहीं कर पाते. ऑफ कोर्स मतलब आई वुड नॉट ब्लेम माय पेरेंट्स. पेरेंट्स वर वेरी कूल, बट देन मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी थी, मतलब आई डिड नॉट हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट. सो पहली चीज तो ये है कि बच्चों को समझना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स के पास क्या रिसोर्सेज हैं, और उनके पेरेंट्स उन रिसोर्सेज की वजह से वो आंसर दे रहे हैं कि भाई हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज, तो इसी हिसाब से ये चल लो. राइट. सो दैट इज व्हाट द किड्स शुड अंडरस्टैंड. द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि भाई अल्टीमेटली बच्चे को एक्सप्लोर तो करने दो. वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट दे सी. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड विल रोबोट्स टेक माय जॉब. बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है. उसमें तो वैरायटी ऑफ करियर्स डाल के देखो, और जैसे ही डालोगे ना तो पता चलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी 80 to 90% चांसेस इट विल बी वैनिश्ड इन नेक्स्ट 5 years. ड्राइविंग will be not a career in the next 10 years. It will be taken over by artificial intelligence. We will not require drivers. We will not require stenotypists. We will not, stenotypists are anyway not required anymore. आज के डेट में खत्म हो गया ना, सेक्रेटरी वाला कल्चर ही कहां है. मैं मेरा काम खुद करता हूं, मेरे पास गूगल असिस्टेंट है. तो आप सोचो करियर्स ही वैनिश हो जाएंगे जो आपके पेरेंट्स आप सोचते हैं एग्जिस्ट करते हैं, और आप भी जो सोचते हो. इनफैक्ट यू गाइज, हाउ मेनी करियर्स you know about is a question. You don't know. And if you don't know those courses, you would probably just start thinking, अच्छा मेरे को किसी ने बता दिया इतनी सी एक्सप्लोरेशन विंडो है, उस एक्सप्लोरेशन विंडो में आपको कुछ करना है, लाइफ उतनी ही है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा. So you have to expand that window to think about it is okay to be a YouTuber as a career, and your parents should also accept that as a career option. Some parents do and some parents do not. Those who do get the chance to probably do something surprising ultimately. और नहीं तो फिर बच्चे पेरेंट्स से लड़ाई करके सीखते हैं. These are the only two ways of doing it. सर बट इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपना अगर अपन कुछ भी चीज सोच रहे हैं कि अपन को ये एक्सप्लोर करना है, अपने पास गूगल या फिर जो भी अपन एक वेब ब्राउजर अगर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बहुत एक बड़ा ओशन है नॉलेज का. तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है कि हमें ढूंढना क्या है, कैसे ढूंढना है, एंड कैसे मतलब क्या क्या चीजें हैं जिससे हम ढूंढ सकते हैं इन अ वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज. कैसे ढूंढना है. I can understand your problem, and मतलब so हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन की प्रॉब्लम रिवर्स हो चुकी है. हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम था कि ढूंढे कहां, कुछ तो मिल जाए. आपकी जनरेशन का प्रॉब्लम इतना सारा है, क्या करें. राइट. सो यू गाइस नीड फिल्टर्स. सो आई थिंक one good solution that I can think of is have a mentor. और मेंटर्स मेरी लाइफ में भी आज मेंटर्स हैं और वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं. दे हेल्प मी टू फिल्टर आउट द केओस. सो आप ना लिटरली अपनी लाइफ के मेंटर्स या करियर मेंटर्स ढूंढिए. इट इज ओके टू गो टू दीज एक्सपर्ट बिकॉज टुडे देयर इज सो मच नॉइज, एंड नॉइज कहते हैं ना, मार्केटिंग नॉइज है. तुम गूगल पे ऐसे डालोगे ना, द वन हु इज मार्केटिंग मोर इज विजिबल मोर, विच इज नॉट रियलिटी. वो मार्केटेड रियलिटी है. सो आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक सही एडवाइजर चाहिए जो आपको फिल्टर करना सिखाए. दैट्स नंबर 1 सिचुएशन. नंबर 2, अगर आपको खुद करना है तो भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर के, प्लान बनाकर एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, रादर देन रैंडम एक्सप्लोरेशन. रैंडम एक्सप्लोरेशन लीड्स यू टू नोवेयर. राइट. प्लान बनाओ ना, क्या मुझे भाई लुक एट यू, राइट. आई मीन यू वांट टू डू समथिंग. नाउ यू हैव टू डिसाइड साइंस कॉमर्स आर्ट्स का डिसीजन लेना. तो पहले साइंस कॉमर्स आर्ट्स के डिसीजन में ये तो समझो, करियर्स इन साइंस, करियर्स इन कॉमर्स, करियर्स इन आर्ट्स. What all careers do you like by the face of it? भाई ये साइंस में ये 25 करियर हो सकते हैं. Do I have a tick and a cross? Then I do a tick cross, tick cross, tick cross. भाई मैंने फिर 10 इधर से शॉर्टलिस्ट करे, 10 इधर से शॉर्टलिस्ट करे, 10 इधर से शॉर्टलिस्ट करे. मैं एक एक को एक्सप्लोर तो करूं, एक एक चीज को ढंग से. So I have to pick one, do it. Pick one, do it. Pick one, do it. Then probably I realize ये तो करना ही था, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ये तो नहीं. You will end up with the entire vast ocean. Will come out with 3-4 options only. अब लास्ट ऑप्शन में 4 जो बच रहे हैं, उसके लिए तुम्हें एक मेंटर चाहिए जो तुम्हें फिल्टर आउट करना हेल्प कर सके. बिजनेस आइडिया भी ऐसे ही बनाते हो. बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढोगे? 15 आइडियाज ढूंढो, गूगल आउट करो रैंडम. ये एरिया पसंद है मुझे, लॉजिस्टिक्स पसंद है मुझे, ट्रैवल पसंद है मुझे, फूड पसंद है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. ये तो पता होता ही है सबको. तो आप उन्होंने एरियाज को ढूंढो. आप नेट पे जाओ, मोस्ट इनोवेटिव फूड आइडियाज. यू प्रोबब्ली फाइंड पीपल क्रिएटिंग क्रेजी फूड्स टुडे यार. एंड पीपल सोचो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, वेजिटेरियन मीट इज अवेलेबल. ऐसा किसी ने सोचा था क्या? बट है ना मार्केट में, कितना बिक रहा है. सो इमेजिन दैट इज द लेवल ऑफ वैरायटी अवेलेबल. नाउ यू सी, अच्छा बट मुझे तो नहीं समझ आता है,
तो भाई क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस निकाल करके 5 ऑप्शन बचेंगे, उनके प्लस माइनसेस किसी सेंसिबल मैच्योर आदमी से डिस्कस करो, समझो, एंड इट शुड नॉट बी समबडी फ्रॉम योर फैमिली, एंड दैट्स समथिंग अगेन आई वुड वेरी मच इंसिस्ट, बिकॉज आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा इमोशनली अटैच्ड होगी। आपको ऐसे किसी इंडिपेंडेंट इंसान के पास जाना चाहिए जो आपको विदाउट इमोशंस आपके मुंह पे बोल सके गलत या ये सही है, बिकॉज उसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको फेयरली बता रहा है कि भाई या तो ये, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, बट तुम ऐसा कर लो। Yes, that's the answer. एक दिन परेश सर के पास आता हूँ जब भी प्रॉब्लम I don't know, यार. I would not say that. आपकी भेंट करने वाले हैं। I mean, so one is that I'm lucky, or whatever way you say it, that my calendar is chock-a-block always, and I'm lucky with that. I feel honored and happy to help people. But I would say यार मेरी जितनी limited knowledge है उतनी है. There are so many people and there are so many experts in this world who know so much more. So ये एक humbling experience होता है ना, मेंटर की नजर से सोचोगे ना, एक बहुत humbling experience होता है जब कोई आपको ट्रस्ट करता है और बोलता है यार आप मेरे करियर का डिसीजन लो, सोचो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टाइम पे। एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन माय लाइफ जो मतलब लिटरली ऐसे मुझे बोलते हैं आप जो बोलोगे हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, एंड देन that's so heartwarming sometimes, but it's scary, and I am not perfect, I am a human being, so गलत हो भी सकता है। एक अच्छे और एक बड़े आदमी की पहचान ही होती है कि वो अपने आप को हमेशा कम बताता है ताकि वो ह्यूमिलिटी दिखाए, वो ग्रैटिट्यूड वाली सेंस दिखे। I don't know, I am just humbled by the grace of God कि पता नहीं, मैं तो कभी सोचता ही नहीं था ऐसा कुछ हो पाएगा, but anyway. So any wildest idea you have come across while fostering entrepreneurship? So many, in fact. So एक तो मैं बता सकता हूँ ड्राइवर बनने का सपना। वो तो खैर मतलब that was my own stupid thought process, but his question is about startup ideas. So in fact, and this guy has done fantastically well. So there's a guy called Harshvardhan Singh Zala, and I met him in Vadodara Startup Festival when he was like 13 or 14 years of age. और बाकी सब adults थे बड़े, मतलब you know graduated 25-30 year old startup. This fellow of 13 years comes on stage with a drone and he says कि मैं एक ड्रोन बनाना चाहता हूँ जो लैंड माइन डिटेक्ट करेगा और आर्मी के लिए ड्रोन बनाऊंगा मैं। And literally मतलब the audience was booing him down and they said this is such a stupid idea, क्या बकवास है, ड्रोन for land mines, all that, and I literally took a selfie with that child and I said you are a rock star and you will do fantastic. And I pasted it as my Facebook cover and he also pasted it as his Facebook cover for 6 months. So we did a deal कि हम एक फोटो सेल्फी खींचेंगे और हम 6 महीने तक अपने Facebook, उस टाइम पे Facebook ज्यादा चलता था, तो हम Facebook पे ऐसे हमने कवर लगा दिया। And believe me, in those next 6 months, Mr. Narendra Modi saw this kid and offered him a 5 crore project to work with the Indian Army. Right, and that is how kids generate ideas. So imagine जो कुछ आइडिया इतना वैकी लग सकता है किसी जमाने पे, और 13 साल के एक बच्चे का आइडिया वो कब जा करके लिटरली आर्मी को हेल्प कर जाए और किस तरह से कर जाए, you never know. And I had wildest of idea, craziest of idea. Look at even Elon Musk. हम SpaceX को देखते हैं, मतलब the thought process कि जो मेरा लॉन्चिंग स्टेशन है वो वापस उड़ के वापस सेट हो जाए, वो थॉट प्रोसेस ही अपने आप में इतना क्रेजी है यार। मतलब हम तो सैटेलाइट लॉन्च करके भेजा, रॉकेट भेजेंगे, उससे एक नेक्स्ट राउंड करके शूट इन होएगा, वो तो कहीं भी जाके गिरे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, बट टू सेव कॉस्ट ही इज गेटिंग इट बैक एंड स्टेशनिंग इट, crazy man. I mean, I think people have vision way beyond what you can imagine. In fact, जो wildest ideas ही होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी inventions बनते हैं। So and then sometimes they can be crazy and stupid also. So, but it's fine. So 1 out of million do shine out also. So अगर आप खुद के यंगर सेल्फ से बात करो तो आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस रहेगी खुद को ही कि अब एंटरप्रेन्योरियल रोलर कोस्टर में एंटर करने से पहले क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? So I think, I mean, मेरे को तो पहला advice which I would want to give myself is start early, not wait so many years. The earlier you start, the journey वैसे ही रहने वाली है, and believe me, it's an experience. So people do business for, I think 2-3 reasons, and दोनों तीनों reasons गलत हैं, right? पहला reason होता है मेरे को और कुछ नहीं करने मिला इसलिए बिजनेस करना है, राइट? मेरे पापा का बिजनेस है इसलिए मैं बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, या फिर मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है इसलिए मुझे बिजनेस करना है।
I think all the three answers are not the right ways of thinking about business. पता है? Business is a way of life. That's most important. That you're deciding a way of life which is going to involve a lot of risks and then rewards. And when those rewards will come, you don't know. So आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आप बिजनेस करोगे तो आप सक्सेसफुल ही होगे. राइट आपका फर्स्ट आइडिया चलेगा, सेकंड आइडिया चलेगा, थर्ड आइडिया चलेगा, कौन सा वाला आइडिया चलेगा नहीं पता है. राइट सो यू आर स्टिल चूजिंग टू टेक दैट रिस्क विथ योर लाइफ एंड द अर्लियर यू स्टार्ट विद दैट जर्नी द बेटर इट इज. सो आई थिंक ये सब मेरे को आप एक्सपीरियंस होने के बाद समझ आया कि नहीं यार ये तो होना ही था. मतलब आप आज 10 जब तक चीजों पे काम नहीं कर लेते तभी जाकर के कोई एक चीज चलेगी और कौन सी चलेगी पता नहीं है. आई नेवर इमेजिन ये चलेगा. मेरे को लगता था जो चलेगा वो तो एकदम फ्लॉप हो गया, जो मुझे लगता था नहीं चलेगा वो चल पड़ा. Because it's customer dependent, it's the markets which decides your business. So this is the most important thing. Second thing is that being stable mentally and not getting worried because of the downfall or losses and other things going wrong is something which every entrepreneur has to learn. हमारी कंट्री में और हमारे एनवायरमेंट में ना फेलियर्स को फ्राउन अपॉन करते हैं हम लोग. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफ का कि हमारी जिंदगी में कुछ फेल होता है, हम उस बच्चे को कभी भी अप्रिशिएट ही नहीं करते. वो माँ बाप भी बोलते हैं अरे तू तो फेलियर है, तू तो ये है, तेरे से तो नहीं हो रहा, उसको देख, गुप्ता जी के बच्चे को देखो ना. सो इट बिकम्स लाइक दैट एंड दैट चाइल्ड डज नॉट लव फेलियर. मतलब हमारे को सिखाते हैं कि नहीं फेलियर हो तो चलो अप्रिशिएट करो, वापस आगे बढ़ते हैं. एंड दैट इज समथिंग व्हिच एन एंटरप्रेन्योर हैज टू लर्न बिकॉज फेलियर तो हर दिन की स्टोरी है. एवरी डे देयर इज अ फेलियर, एवरी डे देयर इज अ प्रॉब्लम. और इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि आप सोचते यार ये तो मतलब डिजास्टर हो गया. बट इफ यू आर एट इट और आप लगे रहते हो, वो डिजास्टर से फिर से एक अगेन एक ब्यूटीफुल चीज निकल के आ जाती है. तो ये सीखना बहुत जरूरी है फॉर एनी यंग एंटरप्रेन्योर. इट्स ओके टू फेल एंड फेलियर इज फन. एंजॉय दैट फेलियर. जिस दिन फेल हो उस दिन पार्टी करो, जिस दिन सक्सेसफुल हो उस दिन जाकर के इंट्रोस्पेक्ट करके सोचो, पार्टी मत करो. आई थिंक दैट्स हाउ आई लिव माय लाइफ. तो एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या स्कोप है? जो लोग लाइक अभी 11th-12th में हैं तो सबके अंदर एक स्टार्टअप की वो वेव तो चल रही है कि हमें भी स्टार्टअप करना है. तो उनके लिए क्या फ्यूचर है नेक्स्ट 5 इयर्स में? किस तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं? सो दो पार्ट्स है पता है इसके. अगेन एक तो ये जो स्टार्टअप करना है ना, ये थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू द मार्केटिंग एंड थैंक्स टू द पब्लिसिटी ज्यादा है वर्सेस इन जेन्युइन इन रियलिटी कितने बच्चों को करना है. क्योंकि मैं जब देखता हूँ वी रन अ कॉलेज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, यू विल बी सरप्राइज्ड. बट जब हम बच्चों को लेते हैं तब बड़े एंथुसियाज्म से बोलते हैं हमें बिजनेस करना है, हम आपका कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, व्हाटएवर. 3 साल तक आते आते बोलते हैं सर स्टेबल करियर चाहिए, स्टेबिलिटी तो है नहीं, इतनी सारी रिस्क कैसे लेंगे, सर बाहर पढ़ने चले जाएं, लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, हार्वर्ड में एडमिशन ले लें, हाउ डू यू डू दिस, एमबीए करना चाहते हैं, उसके बाद जॉब कर लेंगे उसके बाद. सो I think lot of students are not clear in terms of the way of life they want to live, right? तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि भाई पहले तो ये क्लियर हो जाओ कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर स्कोप कितना है. My answer is business is something which is going to run the world, right? और इंडिया जैसी कंट्री में नौकरी वैसे ही नहीं है. Employment is seriously scarce right now. Given the current situation, इंडिया में तो सारी आउटसोर्सिंग जॉब्स हैं. पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी वैसे ही स्ट्रगल कर रही है. तो हमारी कंट्री में तो जॉब्स का सिचुएशन खराब है और पूरे वर्ल्ड में खराब है इस समय पे. राइट इंडिया में फिर भी जॉब्स हैं बिकॉज वी हैव इंडिजिनस बिजनेस आल्सो एंड देयर आर इंडिजिनस इंडस्ट्रीज व्हिच आर ग्रोइंग. सो वहां पे फिर भी नौकरी है बट जॉब तो उतनी रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, तो वो कहीं जा नहीं रहा है. द ओनली वे टू सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग स्टार्टअप्स बिकॉज उनके पास रास्ता नहीं है. वो इतने सारे यूथ को नौकरी देंगे कैसे? सो दे सेड चलो स्टार्टअप की वो चलाते हैं सो दैट जिसको भी जॉब नहीं मिल रही चलो बिजनेस की तरफ पुश करते हैं. तो ऑल यंगस्टर्स हैव टू स्टार्ट थिंकिंग डू आई रियली वांट टू डू बिजनेस, एंड इफ दे वांट टू डू बिजनेस देयर इज इनफ टू डू इन दिस कंट्री. इंडिया इज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड जो भी लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है वही स्टार्टअप का गढ़ होगी. India is number 3 in the world already. Yeah. मतलब we have become number 3 in the world. We are number 2 in terms of the funding or the valuation that we are getting right now. So India is going to be the epicenter of startups very soon. सर बट माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने कहा कि किसी को बस की लहर चल रही है इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करनी है एंड किसी को एक्चुअली अंदर से कीड़ा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए. तो पहला तो ये कि उसके अंदर डिफरेंशिएट कैसे करें कि आपको एक्चुअली में क्या है. एंड सेकंड थिंग इज कि मतलब
व्हाट यू से कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये है कि प्रॉब्लम्स आप डिस्कवर करोगे एंड तो टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी कर सकता है। तो ये है कि इट्स नॉट लाइक बाय बर्थ पे एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, आपको अपने हिसाब से इंडस्ट करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप। 100%। तो द थिंग इज ऐसा नहीं है कि आप कीड़ा नहीं है तो आप बना सकते हो, या फिर एक डिसीजन हो सकता है कि मेरे में कीड़ा नहीं है तो आई शुड स्विच टू समथिंग एल्स। तो हाउ टू डिसाइड? No, I'll tell you, it's about an introspection about you as a person. तुम्हारी जिंदगी में let's look at this way कि तुम्हें स्टेबल लाइफ चाहिए कि तुम्हें रैंडमनेस पसंद है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ना 5 जॉब बदली और मैं उन सारी जॉब में टॉप परफॉर्मर था। तुम सोचो कि मैं जब रेजिग्नेशन देने जाता था, मेरे को मतलब बोनस मिला, I am rated number 1 star performer of the company or one of the good performers of the company. My boss is very happy, my company is very happy, and I'm saying I want to resign. My reason to resign, I'm bored of my job. And I have resigned 4 or 5 of my jobs just because I got bored of them. It was not that I was not doing it successfully. I was an investment banker, I was doing very good job all across the globe. तो challenge है कि मेरी personality नहीं थी, right? और मैंने वो बाद में realize किया कि नहीं यार मेरे को randomness पसंद है। Do I enjoy this randomness? Then only I can be a good entrepreneur. तो ये पहले ढूंढो कि तुम कैसे इंसान हो। तुम क्या सेम चीज रोज कर सकते हो? अगर तुम सेम चीज रोज कर सकते हो तुम एक अच्छे एम्प्लॉय बनोगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट बीइंग अ सुपर स्पेशलिस्ट इन वन थिंग वर्सेस एन एंटरप्रेन्योर जिसको सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो वो ऐसा होता है जो सब चीज को एक्सप्लोर करने वाला बंदा होगा। सो दैट इज नंबर 1 एंड दीज आर थिंग्स व्हिच यू कैन टेस्ट फॉर योरसेल्फ। अपने आप को खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके तुम्हें 5 मिनट में आंसर आएगा कि मैं ऐसा हूं कि ऐसा हूं, राइट? मेरे को अगर महीने का 1 लाख रुपए नहीं मिल रहा तो क्या मैं शांत हो जाऊंगा? मैं गरीबी में रह सकता हूँ क्या? मेरे दोस्त जब गाड़ी खरीदेंगे मैं इसको स्कूटर के पैसे भी नहीं होंगे, चलेगा क्या मेरे को? और अगर चलेगा तो फिर आई एम रेडी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और नहीं चलेगा तो यू आर नॉट रेडी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि अगर आप उसके अंदर उस टाइम पे कंपैरिजन करोगे और आपका दोस्त वर्ल्ड हॉलिडे पे जा रहा होगा, आपके पास गुजरात जाने के पैसे भी नहीं होंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो? आर यू गोइंग टू टेक इट विद स्ट्राइड और आर यू गोइंग टू गो डाउन एंड थिंक वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ? अगर आप ये नहीं झेल सकते हो तो आप एंटरप्रेन्योर मत बनो, क्योंकि बहुत डेंजरस होने वाला है। So these are the things about business. A businessman is a jack of all trades. उसको मेरे को मार्केटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या मेरे को करनी तो पड़ेगी ना यार। मेरे को HR नहीं पसंद है, मैं तो फाइनेंस का बंदा हूँ यार। मेरे को मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ, सोचो मेरा क्या लेना देना कंस्ट्रक्शन से, बट मेरी बिल्डिंग है, मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो सोचना पड़ेगा ना। सो आई हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। A businessman has to have all varieties, and it should be anything. Randomly, anything comes, and I should be able to solve that problem. An employee, on the other hand, is a super specialist. Banking sector, M&A, finance expert. और मैं इतना सुपर स्पेशलाइज्ड नौकरी करता हूँ, मतलब पूरे कंट्री में 4 जने होंगे मेरे जैसा काम करने वाले। तो जब वो पैसा तभी मिलता है बिजनेस जॉब में, और बिजनेस में तब मिलता है जब आप वैरायटी ऑफ चीजें कर सकते, कोई भी डिसीजन कर पाओ और आगे बढ़ जाओ। सो ये पास ढूंढना आता है, और आप थोड़े भी मैच्योर हो, नहीं आता है तो मेंटर के पास जाओगे, आस्क हिम टू हेल्प यू, जज योरसेल्फ, ट्राई आउट थिंग्स, करके देखो। 2 महीने इंटर्नशिप पे जाओ, समझ आ जाएगी ना नौकरी कैसी है। एक बिजनेस करके देखो, एक स्टार्टअप आइडिया कंपटीशन पे जाके देख लो, अपना समझ आ जाएगा बिजनेस करने में मजा आया कि नहीं आया। यू गेट योर आंसर्स। बट लोगों को क्या होता है सर, एक बार स्टार्टअप कर लिया, फेल हो गए, फिर जॉब पे स्विच हो जाता है, तो वो डरपोक है। एग्जैक्टली दैट आंसर तो बहुत सिंपल है, वो डरपोक है। तो बिजनेस इज अ वे ऑफ लाइफ, या आपने अगर चूज कर लिया तो फिर कर लिया, राइट? आपने फिर अगर नौकरी करी तो आपसे नहीं हुआ यार, और या फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे बस की बात नहीं है, इट इज ओके। डिसीजन गलत है, आपका डिसीजन गलत था, आपसे नहीं चला, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नौकरी कर लो। वो नौकरी में खुश है क्या, इज अ क्वेश्चन, एंड ओनली व्हेन दे आर हैप्पी विद देयर जॉब दैट आई एम फाइन। और आई थिंक जो एक बार है ना एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर बिजनेस में घुस गया तो फिर वो वापस से जॉब कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है, लोग करते हैं, मैंने तो बहुत सारों को देखा है। मेरा एक फ्रेंड था, HSBC में था, मैंने और उसने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे जॉब छोड़ी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया, हम दोनों स्टार्टअप फेल हो गए, उसका भी फेल हुआ, मेरा भी फेल हुआ। उसने वापस से जॉब ज्वाइन कर ली, मैंने दूसरा स्टार्टअप कर लिया। and is he performing well now? He's doing fantastically well, and he's working in a top shot investment bank right now, so there's nothing wrong in doing that. को जितना मैंने देखा है ना कि मतलब अपनी सोसाइटी में भी अब धीरे धीरे जैसे स्टार्टअप की लहर आती जा रही है, तो लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जब बिजनेस होता था, जो शुरू में दिक्कत थी कि उसे इंफीरियर मानते थे, आज के टाइम पे एम्प्लॉय होने को लोग इंफीरियर मानते थे। तो मेरे को तो लगता है आई डोंट थिंक सो, वैसे अभी तक इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लोग बाग बिजनेस को इतना अच्छा समझते नहीं है हर जने के लिए।
अभी तक सोसाइटी में बहुत सारे वो हैं challenges, and jobs pay very well, so not all entrepreneurs earn as much. So today jobs are very high paying jobs यार. So not all businesses are, society का change आ रहा है but पूरी तरह से तब नहीं आया. I will not say that. जैसे हमारे जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें आप देखेंगे तो यही है कि तेरे को बिजनेस नहीं करना, तेरे को नौकरी करनी है, अरे तू तो वही कन्वेंशनल चीजों पे चलने वाला है. ये मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है सारे लोगों के अंदर. हाँ, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने जाकर ये खूब सारा गाना गा दिया है दुनिया में, बोल रहे हैं बिजनेस में ज्यादा पैसा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ज्यादा चीजें हैं. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ना 1 out of 10 businessmen will be successful and 9 will fail. So you have to take it with a pinch of salt कि business ना हर किसी के लिए है ही नहीं. It is limited to those who have the guts to do it, and others will probably struggle in business itself. आज मैं जितने नॉन सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखता हूँ ना, वो सब अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा नौकरी कर ले, पढ़ाई कर ले, और ये भी हो रहा है. सो अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी यार, आप लोग के बीच की कॉन्वर्सेशन कैरीज नो वेट because it is your parents or when you grow that you will form your real opinions. आज तो आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे हो. प्रॉब्लम है कि लाइमलाइट अभी स्टार्टअप को मिल रहा है, इसलिए स्टार्टअप को वैल्यू मिल रही है. Basically mature talks. हाँ, ये मेच्योर टॉक्स है. So, what are the major significant changes you have seen in education industry in the last decade? Oh, this is such a good thing that has happened. Believe me, मैं जब इंडिया आया था, so आज से 10-11 साल पहले, मैं मतलब ऐसे डिजास्टर की जैसी सिचुएशन थी यहाँ पर. और मेरे घर में क्राइम रूम है, राइट, और उसके अंदर ना बच्चे आकर केवल अपना करियर के लिए रोते हैं. एंड I can tell you, I have met people of 25, 30 years, 35 years of age who would come to my room and cry because they would say हमारा करियर बर्बाद हो गया because of the education system. और मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे सकता हूँ. गवर्नमेंट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर मार्कशीट गलत है, राइट. वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को पूछो कि आप नंबर ज्यादा क्यों नहीं देते, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि 70% भी बच्चे नहीं ला पाते. अरे भाई, आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि IIM अहमदाबाद में जब एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा अप्लाई करेगा और एक दूसरी यूनिवर्सिटी का बच्चा अप्लाई करेगा. वो दिल्ली वाले का 95-100% है, आपकी यूनिवर्सिटी का 70% है. वो बच्चे का तो आपने जिंदगी भर के लिए IIM अहमदाबाद काट के रख दिया. And this is just out of your stupid thought process and influences. This is exactly how education system was. वो जो book थी ना, maths की book of 10th standard was reprinted for 20 years flat. और वो आज तक सिचुएशन वैसी है. बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें रीप्रिंट ही चल रहा है. वो नंबर्स ही गलत है, वो क्वेश्चंस ही गलत है, वो जो सिखा रहे हैं वो चीजें ही गलत है, राइट. सो आई कैन टेल यू दिस इज व्हाट वाज अ डिजास्टर. I can only see some positive light, and that positive light is with the NEP because the new education policy has started carving newer things. So a lot of new things are happening now, and I think that's a very positive move. The result and the impact is yet to be seen, and there is a lot that is happening. So I feel now very happy when I can talk about multidisciplinary education and tell children कि नहीं तुम physics के साथ business studies के साथ music लेके पढ़ सकते हो. Right? It's such a classy, weird combination, but you might still become something. I have a startup which is taking advantage of all the three. So एक startup है जो influencers, music influencers को technologically support करता है. अपना सोचो, उसको physics, maths, business and music की knowledge से फायदा मिल रहा है because it's that weird a combination. History plus accountancy से भी फायदा हो सकता है. So I mean, there are a lot of things that are now emerging. And education system is now going to change big time. All schools have started talking about entrepreneurship. कभी सोचा था क्या स्कूल में entrepreneurship का conversation भी हो रहा है, right? स्कूल के अंदर आज हम जाते हैं तो हमारे random ideas को फिर भी accept करके ताली बजा देते हैं यार. कहाँ मतलब हमारे जैसे लोगों ने तो बाहर निकाल देते कि तुम बकवास हो, क्या बकवास बता रहे हो हमारे. मतलब I will be surprised 10 years back if I would go and tell this in a school ना, I have got principal saying please ये हमारी क्लास में मत बोला करो. And I have walked across schools where टीचर ने बच्चों को बोला है कि अपना दिमाग मत चलाओ, जो मैं कह रही हूँ रट्टा मार लो. तो भाई स्कूल में दिमाग चलाने गए थे कि बंद करने गए थे, राइट. तो हम तो स्कूल में दिमाग बंद करने की ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, और अभी तक वही दे रहे हैं, काफी हद तक दे रहे हैं. बट विथ द न्यू एज थिंग्स हैपनिंग, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है. लोगों ने एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट शुरू करी थे कि हमारे स्कूल का करिकुलम कूड़ा है,
तो अब तो टीचर नहीं मानता है, टीचर पहले ही बताता है नहीं है तो मेरे को पता है आँख खराब है पर हमको पढ़ाना पड़ रहा है, धीरे धीरे चेंज होगा. So they are okay and open to these ideas and that's a very positive move that has happened. College level पे बहुत सारे improvements हैं. So I can tell you today colleges are innovating, implementing, ideating newer things and we are able to fight our way through. For example in GCSE हमने books हटा दी, फिर हमने ओपन बुक एग्जाम कराना शुरू किया, फिर हमने कहा ओपन इंटरनेट एग्जाम हम करा के दिखाएंगे, फिर हमने कहा हम तो बच्चों को पेन एंड पेपर ही हटा करके सब कुछ टाइप करो, एग्जाम में पीपीटी बनाओ, एग्जाम में वीडियो रिकॉर्ड करो, एग्जाम के अंदर करके दिखाओ, एग्जाम में वेबसाइट बना के दिखाओ. These are realistic situations and people appreciate it now. So when we have gone to all the experts in the country, पूरे एजुकेशन करिकुलम में they loved our curriculum. Because they said, यार आप तो बड़ा नया कर रहे हो, this is very interesting and you have been able to structure it so beautifully. So these are good changes which are happening at all levels. So you'll see ये अभी tip of the iceberg है. So अभी अगले 10 साल में जो होगा ना वो बहुत मजेदार होगा और ये पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बड़ा डिजास्टर होने वाला है. ये जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स का डिस्टिंक्शन है वो ऑलरेडी पॉलिसी वाइज खत्म हो चुका. यू आर नॉट सपोज टू टीच लाइक दैट. मतलब तुम साइंस लोगे कि कॉमर्स से क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए आज की डेट में. 10th क्लास के बच्चों को पूछना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ. And you should be allowed to learn geography with accountancy with physics and mathematics and that's a good acceptable combination as per the government. So government ने तो अपना काम कर दिया है, अब तो schools और colleges को ही करना बाकी है. मतलब लोग धीरे धीरे चेंजेस एक्सेप्ट करने लग रहे हैं. दैट्स इट. जैसे कि भगवत गीता आपके टेबल पे रखी है अब तो करिकुलम में शायद इसको भी ऐड कर रहे हैं जितना. I think it should be and all these things really teach us a lot of things, मतलब मेरे को लगता है मेरे को तो एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारी नाराजगी है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम स्लेव्स के अलावा कुछ बनाने नहीं सिखाते. हमें लाइफ स्किल सिखाते हैं, हमें पर्सनल स्किल सिखाते हैं, हमें नेटवर्किंग स्किल सिखाते हैं. तुम्हारे सारे एग्जामिनेशन तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स से डिटरमिन होती है. तुमने मैथ्स में कितना अच्छा करा उससे क्या फर्क पड़ जाएगा लाइफ में. तुमको 5 दोस्त बनाना आता है कि नहीं आता ये बताओ. तुमको ना 5 लोगों को फोन पे उठा करके बात कर पाते हो कि नहीं बताओ ये बताओ. राइट. तुमको किसी के साथ मैं नेगोशिएशन के लिए बिठा दूं और सही डील क्रैक कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ. राइट. तुम सच्चाई और ईमानदारी से बिजनेस कर सकते हो कि नहीं ये बताओ. एंड दीज आर स्किल्स टू बी टॉट. तुम मेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ. तुम मेंटल डिप्रेशन को कैसे हैंडल करोगे ये बताओ. ये सिखाते नहीं. And this is not in the curriculum. And I think this should be the most important curriculum for a person. क्योंकि वो लाइफ है. And maths जानना या ना जानने से लाइफ डिटरमिन ही नहीं होती. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कभी किसी की लाइफ में एक्चुअल काम नहीं आई. नहीं आती है भाई. That's a reality. मैं तो बहुत लड़ाई करता हूँ. Don't ask me. I have so many stories around this. So जब मेरा खुद का इंडिविजुअल स्टार्टअप भी रहा है और लोग भी जो स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले जो अर्ली स्टेज पे एक प्रॉब्लम फेस होती है दैट इज कि उनके पास फंड नहीं होता और उनको ये भी नहीं पता कि फंड लाना कहाँ से. सो उस पे आपका कुछ ओपिनियन कि वो क्या कर सकते हैं. सो मेरा ओपिनियन ना बहुत अलग है कि तुम जिस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हो ना वो एक नॉन कंप्लेन एरिया है. तुम्हारे पास जितनी फंडिंग अवेलेबल है ना तुम्हारे से प्रीवियस इतनी सारी जनरेशंस में उसका 1/10 भी नहीं था. सो यू आर एटलीस्ट 10 times more privileged than I am. Right. The amount of funding available, the amount of support available from the government is way more than what was ever existing. That's number one. Acceptability is more, parent support is more, your life is more. Everything is more for you. That's number one. Number two is कि आपको ऐसा बिजनेस चाहिए ही क्यों जिसके अंदर पहले आपको पैसे के कैपिटल के एक्सपेंडिचर के बिना बिजनेस नहीं हो सकता. मैं मानता ही नहीं हूँ. कोई भी एक छोटा सा बिजनेस आज के डेट में जिस लेवल तक तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो. तुमको आज ज्वेलरी बेचनी है, तुम एक ज्वेलरी वाले से टाई अप करके आओ, Amazon पे एक अकाउंट बनाओ, छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फीस दो. उस रजिस्ट्रेशन फीस के बाद तुम उस बंदे से ज्वेलरी तुम्हें खरीदनी नहीं, पहले ऑर्डर लो, फोटो खींच के दे दो. जब ऑर्डर आएगा तो हम उससे खरीदेंगे, पैक करेंगे और बेच देंगे. 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू होता है सर. राइट. इससे ज्यादा क्या पैसा चाहिए फिर तुमको. एंड अब वो बिजनेस को अब मुझे तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करनी है. अब ये तो आपका स्टिकीनेस है, ये आपका मेंटल स्टिकीनेस है, ये बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है. आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा यार. आपको पहले छोटे से शुरू करो फिर बड़ा करो. दुनिया के सारे बड़े बिजनेसमैन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो.
And they all were bootstrapped at some point of time. They all started in a garage. They all started in a small office, and they did not have the money. And they started from there and then built those businesses. So this is just a way of finding an excuse कि मेरे से नहीं होता. आप अगर छोटा कर पाओगे तभी आप बड़ा कर पाओगे यार. ग्रो विद दैट. अगर आपको मैं सब कुछ सिल्वर पैटर्न में स्पून में लाके दे दूंगा तो फिर आपने क्या किया यार? आप तो फिर अमीर बाप बाप की औलाद हो, आपने कर लिया वो तो ठीक है. That's just there. You are good for nothing. So you are lucky that you're poor. It's a privilege to be poor. Trust me. Right? You should feel proud and honored that you're poor because you have a chance to prove yourself and prove to the world that you can do something. If you're already born privileged, you have nothing to prove. It is so difficult to prove for a privileged time. So तुम्हारे पास कितनी अच्छी opportunity है कि तुम गरीब हो. हो कि नहीं पता नहीं, but I'm just giving you an example कि अगर पैसे नहीं है तो खुशी की बात है सर. मजा आता है, खुशी उसी में मिलती है. I mean today if I can say I have built a business and I have purchased a Jaguar, yes I have done with my own money dude. I did not have that money. मेरे घर में आम खाने के पैसे नहीं थे और वो सच्चे ही नहीं थे और आज हैं. और अगर वो हैं तो मेरी फैमिली ने मैंने मिलकर के मेहनत करके कमाया. So I am privileged and honored to be doing this. What is the big deal about it? I should feel happy about it. इतने अच्छे से मेरे को जितनों भी लोगों ने गरीब बोला इतनी खुशी मेरे को आज तक कभी नहीं. I mean believe me, मैं जब कॉलेज में था ना तो मेरे को कैंटीन में 5 रुपए का समोसा खरीदने में जान निकल जाती थी. It is so difficult to buy that 5 rupees samosa. And I can tell you that keeps me humble today. That is the reason that I never feel so proud about anything. It is so important to feel and understand कि गरीब कैसे सोचता है. Right? आप उसको कभी अब disrespect नहीं कर सकते. I have learned to respect a गरीब आदमी because I have been into that shoe. Right? मेरे अंदर arrogance इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं वो देख चुका हूं. मुझे पता है वो जिंदगी कैसी है. So yes, it makes a lot of difference. It is good to be poor at some point. सर जितना मैंने अभी आप कन्वर्सेशन से ये चीज समझा, दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन. सो कि अपन Sorry, I would want to probably finish off the funding कहाँ से ले सकते हैं. I'll tell you one more thing. Sorry, before we move on to this question, there are a lot of funding investments available also. So आपके पास बहुत सारे options हैं. आप गवर्नमेंट की स्कीम्स पे जाओ, आप गवर्नमेंट ग्रांट्स लो, आप गवर्नमेंट का सपोर्ट सीड फंड लो. बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं. अगर आपके पास अच्छा आइडिया है और अच्छा बिजनेस है तो आपको फंडिंग मिलेगी. राइट? तो ये भी मैं नहीं बोल सकता कि फंडिंग अवेलेबल नहीं है. तो आपने अगर काम कर लिया, एफर्ट डाला, अच्छा पर्सपेक्टिव, सबको सामने वाले को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी चाहिए यार, तो आपके अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा? तो आप एक अच्छा आइडिया लेकर के जाओगे तो फंडिंग भी मिलेगी और सबको मिलती है. जो अच्छा करते हैं उनको फंडिंग मिलती है, ये तय है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. पहले अच्छा काम करके दिखाओ और आइडिया को छोटे से शुरू करो, छोटे आइडिया को धीरे धीरे बड़ा करो, एक लेवल पे लेके जाओ. जब सामने वाले इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप लाइफ चालू हो जाएगी. आई एम सॉरी बट आई हैड टू आंसर दिस. दिक्कत नहीं है. जैसे आपके जो कन्वर्सेशन से मैं जो समझ सकता हूँ दैट इज क्या करना चाहिए उससे इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं करना चाहिए, जितना मेरे को लगता है. तो सर ये कैसे फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए अपनी कोई भी जर्नी पे, जैसे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे, पर्सनल लाइफ में. एंड थिंग इज कि आपको पता भी होता है कि कैसे करना है बट यू कांट डू इट, एग्जीक्यूट करना प्रॉपर नहीं होता. तो सर उस पर क्या? सो आई थिंक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोनों ना इंटर रिलेटेड ही है. राइट? एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द फुल लिस्ट कि दुनिया खुली है, ऑप्शंस है मेरे पास. एंड देन यू स्टार्ट क्रॉसिंग आउट बिकॉज क्रॉसिंग इज इजियर. ट्रस्ट मी, यू नो टिकिंग इज मोर डिफिकल्ट देन क्रॉसिंग. सो मेरे को पता है कि ये नहीं करना वो आसानी से हो जाता है. तो आप जब भी फर्स्ट लॉन्ग लिस्ट पे जाते हो, वो लॉन्ग लिस्ट से शुरू करो. हमेशा शॉर्ट लिस्ट से कभी शुरू नहीं करना चाहिए. लॉन्ग लिस्ट से शुरू करो, काटो. देन यू आर लेफ्ट विद अ स्मॉल लिस्ट. और उस टाइम पे जाकर के फिर टिक्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है. और टिक्स को इवैल्यूएट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है. बट आई टेल यू आई हैव डन दिस एंड आई सजेस्ट दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आपके जो भी 5 ऑप्शन बच रहे हैं उसके प्लस एंड माइनस पूरी ढंग से लिख के और इवैल्यूएट करने चाहिए. एंड मैं आज तक करता हूं कि हाँ ये एक का प्लस है, ये एक का माइनस है, ये एक का प्लस है, ये एक का माइनस है. और फिर उसको देख करके समझ आता है कि नहीं यार ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन में से मेरे को कौन सा चूज करना है. फिर एक को बेस बना लो. मैं बोलता हूं दिस इज अ लाइकेबल ऑप्शन. मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो है मुझे इससे ऊपर कौन सा भारी लगता है, ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है. अगर ओवरऑल ये ज्यादा अच्छा है, इसको डिस्कार्ड करो, ये बेस बन जाएगा. फिर अब जो कुछ कंपैरिजन होगा वो इस बेस से कंपैरिजन होगा.
और आप वो कंपैरिजन करके अपने डिसीजंस ले सकते हो. सो स्ट्रैटेजाइज लाइक दैट कि दिस वर्सेस दिस, यू नो, ये बर्ड मेरे हाथ में, दूसरी वाली बर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको छोड़ना भी तो पड़ेगा. तो मेरे को कौन सी वाली चाहिए वो सोच के रखो, और अगर ये ले रहा हूं तो फिर इसको जाने दो, फिर देन इसको बेस बनाओ, ये तो है वहां हाथ में. एंड दैट्स द राइट वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस. Outside the world of entrepreneurship, what is the favorite way to spend a weekend or a day off for you? Oh, I do weird and random things. है मतलब मैं तो बहुत ही, मेरी list of hobbies is too much, and I do variety of things in my life. So मैं I love traveling. I am a swimmer. I love scuba diving. I love so these are things which I would do. I would love to spend time with my daughter and my family. So that's one side. Then my hobbies: I'm a singer, painter, dancer, writer. I do rangoli. I do random things. I start creating new things here and there. कोई ना कोई mentoring, meeting people sometimes. But वो तो लिस्ट ही endless है. Instrument में भी I play almost all instrument. तो सितार, गिटार, ढोलक, तबला, वायलिन, xylophone. I play all of them. So मेरे को कुछ मिल जाता है, मैं शुरू हो जाता हूँ. तो anything. Fields तो सारी explore करी. Anything goes. मतलब for me I think anything goes. What I am not very fond of, so मेरी negative list बहुत clear है कि मेरे को वो कोई भी काम पसंद नहीं है जिसके अंदर ना मैं कुछ ना कर रहा हूँ. राइट. सो मतलब मेरे को जो बच्चे जब बोलते हैं ना, माय हॉबी इज वाचिंग टीवी एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे लगता है वो खुद कुछ कर ही नहीं रहे. राइट. एंड दैट्स वेयर माय प्रॉब्लम इज कि वो मेरे लिए, वो कभी भी मेरा वेल स्पेंट वीकेंड नहीं होता. मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज जब मैं बीमार होता हूँ तब देखता हूँ, क्योंकि मैं तब कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं हैंडीकैप हूँ. राइट. सो वो तो मेरा उस टाइम का काम है. जब मैं एक्टिवली कुछ कर सकता हूं तो मुझे प्रोडक्टिवली कुछ करना चाहिए यार. क्रिएट समथिंग. वॉचिंग इंस्टाग्राम इज नो हॉबी, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम. सो क्रिएट अ रील, आई एम हैप्पी. डोंट कंज्यूम दैट रील यार. I mean, so that is how it is. म्यूजिक करना तो खुद बजाओ यार, किसी और को क्यों सुनने जा रहे हो. हाँ, सुन के बजाओ, ऑफ कोर्स पहले सुनना पड़ेगा, बट फिर वो सेंसिबली सुन रहे हो, प्रोडक्टिवली और पर्पसफुली सुन रहे हो. क्रिएटिव माइंड की मुझे कभी बजाना है इसलिए मैं सुन रहा हूँ, मुझे टेक्निक समझनी है, मुझे मेथड समझना है, मुझे इंस्पायर होना है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ. तो वो पर्पसफुली सुन रहे हैं, नॉन पर्पसफुली नहीं सुन रहे. सो इसलिए आई हेट काउच पोटैटोज. आई हेट दोस पीपल जो चलो भाई बेड पे पड़े हुए और वाचिंग टीवी एंड प्लेइंग, लिसनिंग टू म्यूजिक. रीडिंग इज स्टिल ओके. रीडिंग इज प्रोडक्टिव. बट हाँ, और अगर आप सुन भी लो, टीवी भी देख रहे हो, ठीक है यार, थोड़ी देर कर सकते हो, इट कुड बी अ ब्रेक, बट दैट कांट बी द ओनली थिंग टू डू. दैट कांट बी योर हॉबी. हॉबी इज समथिंग प्रोडक्टिव. So as you have been part of various networking advisory boards, so any amusing or memorable networking encounter you faced? You're networking environment with people. I don't know. I can tell you somebody's situation. So we had Elvish Yadav. In the IT startup fest of government of Rajasthan, and I was the one interviewing and talking to him. ठीक है. तो so we had Elvish Yadav, we had physics वाला Alak Pandey, and we also had Crazy XYZ. Okay. तो जब फिजिक्स वाला अलग पांडे का बहुत अच्छा सेशन हुआ, फिर अमित का बहुत अच्छा सेशन हुआ, क्रेजी एक्सवाईजी का. फिर when Elvish Yadav comes in, then alongside a lot of people walked into the auditorium, and पूरे प्रोसेस में उन्होंने एल्विश को और मुझे बोलने नहीं दिया. एल्विश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एल्विश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. So मतलब it literally became like a political situation versus, and I felt somewhere that it was planted. So मुझे तो लग रहा था कि मतलब the whole idea was to create that chaos so that there is more publicity around. So yes, it is. I have had so many people who look at different ways. I have met so many celebrities. कुछ बहुत मॉडेस्ट होते हैं, कुछ बहुत एरोगेंट होते हैं, उनको लगता है वो एरोगेंस ही उनका स्टाइल है. कुछ लोग होते हैं नहीं यार, हम हम्बल और मॉडेस्टली बैठे हैं तो भी हम खुश हैं. सो everybody is different, and trust me, everybody has their own different style of, their job is to publicize themselves ना. मतलब तो ये तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है. वो जो भी उनकी स्ट्रैटेजी उनके लिए वो कर जाए, वो कर जाए. उनकी पर्सनल ब्रांड उसी तरह, उनकी ब्रांड उसी हिसाब से बनी हुई है. मतलब सो मुझे लगता है कि वो उनका थॉट प्रोसेस और उनका स्ट्रैटेजी वो वर्क करता है, नहीं करता है.
So बातें खत्म नहीं होंगी. One last that is what is that decision to return to India after completing your MBA, and how did that transition impact your life? So my return to India was not by my choice. It was by my family's choice. And I was diagnosed with a tumor. And I was told to go through a chemo medication for almost 8 to 9 months. मेरी वाइफ मुझे हॉस्पिटल में मैं लेटा हुआ था, मेरे ऐसे सिरिंजेस वगैरह लगी थी पूरी बॉडी में, और मैं हंस रहा था. मैंने कहा अरे ठीक ही तो है, मरी तो जाएंगे. मैं तो पागल आदमी हूँ सब. मैंने कहा मरना ही तो है, एक दिन तो सबको मरना है, मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा. मैं स्टार्टेड कॉल्ड अप माय हाउस. शी सेड ये पागल लड़का है. I can't live with this guy like this. So then my parents and we had a conversation and we said India में रहने के लिए कितने पैसे चाहिए या क्या लगता है, and we came out with a number. I was like इतने पैसे के लिए काम कौन करता है, इतना तो कमा लिया अभी लाइफ में. So it was okay to even come back and at least a simple humble life. और मेरी कोई ऐसी demands and ask ही नहीं है, तो मैंने कहा simple humble life मैं वैसे भी जी लूंगा. So I just decided to live that humble life and we came back to India without any thoughts. So मतलब literally वो medical process, फिर मैं इंडिया आया, I went through my journey of medical process. I lost my skin, I lost my hair, I gained weight, I used to have patches on my full body. मेरे पूरे body में blood clots हुए. I went through that journey of recovering and I recovered. And उसके बाद फिर वापस से सोचा एक बार नौकरी, तो मैंने 4-5 जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए CV डाल दिया. मैंने तो सोचा नहीं था बिजनेस कभी करना है, तो CV डाल दिया, सबसे फोन आ गया. And all of them called me, तो all ex-bosses, they all good friends and all. राजा वापस अगर तेरी मर्जी है, you come back. I was like यार इतना आसान है नौकरी करना, तो बिजनेस करते हैं क्योंकि डिफिकल्ट होगा. और इंडिया में रहना बहुत डिफिकल्ट था. मतलब for a person like me who had stayed out for so many years, मतलब मैं और मेरी वाइफ अपने आपस में भी हम इंग्लिश में बातें करते हैं, राइट. हमारी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कॉन्वर्सेशन इज इंग्लिश इन आवर हाउस, बिटवीन द टू ऑफ अस. So हमारे घर अब तो कहते हैं हम बहुत हिंदी बोलने लगे, but believe me, when somebody would come to our house, like, how do you speak in such a British accent? And I go, that's what we are. Yeah, we have lived our lives like that, you know. So बहुत सारी चीजें थी जो हमारे लिए तो कल्चरली शॉकिंग थी. हमसे गाड़ी नहीं चली, you know, गाड़ी में वो लेफ्ट राइट भूल गए थे, you know, हॉकिंग देख करके परेशान, डस्ट देख के परेशान, धूल धक्कड़ देख के परेशान. बहुत सारे फिर कल्चर बहुत डिफरेंट हो गया था. प्रोफेशनल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कल्चर वर्सेस देसी जयपुर कल्चर. So see, within India also, Bombay, if you go in a corporate situation, it's a very different world versus a Jaipur का देसी business environment. तो हमको तो फिट इन होने में इतना टाइम लग गया कि हम लोगों से रिलेट ही नहीं कर पाते थे. लोगों के आइडियोलॉजीज, थॉट प्रोसेसेस मैच ही नहीं करते थे हमारे से. बट नाउ वी आर ओके, वी हैव लर्न्ड दिस प्रोसेस. इट वाज पहले, मतलब आई कम फ्रॉम अ रूरल सिंपल हम्बल फैमिली बैकग्राउंड, तो पहले हिंदी बहुत अच्छी थी, फिर हिंदी से इंग्लिश सीखी, फिर इंग्लिश को इम्प्रूव किया, हिंदी को भूला, फिर वापस आकर के रियलाइज करा वापस हिंदी सीखो. So we have come full circle in our life, and that's what life is. So it is good. So let's conclude this. So youth को आपकी क्या advice रहेगी at last? My answer is that you know, I think enjoy your life. Most important, do not miss those minutes of life. और एक बहुत important message है मेरे को लगता है कि प्लीज अपने आप को ना दुनिया की नजर से देखना बंद कर दो. अपने आप को अपनी नजर से देखना शुरू करो. You guys live in so much of peer pressure. You live for others rather than living for yourself. And the way population is growing, हर दिन Instagram पे कोई बच्चा सुंदर दिखता है, कोई दूसरा जना, आपको लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे. किसी का प्रोफाइल आपने LinkedIn पे देखा और आपको लगता है हमने तो कुछ नहीं किया लाइफ के अंदर. It is so intimidating. And you have to have faith in yourself rather than looking at all those people. वो जो Instagram पे अच्छी फोटो डाल रहे हैं, वो उसके पीछे कितने अगली हैं वो पता भी नहीं है हमको. Right, so you don't get to see the real faces of people. वो जब हमारे जैसे मेंटर्स के पास आते हैं ना, तब उनकी रियलिटी अंदर से निकल के आती है और तब हमें समझ आता है कि हर किसी की जिंदगी में दुख है. Right, so please accept that. Do not worry about what others are doing. You worry about how are you better than yesterday. That's all. Are you enjoying that betterment from yesterday? Are you learning something new? And that is what it is. तुम किसी और के जैसे नहीं हो. तुम्हारा थंब इम्प्रेशन अलग है, तुम्हारा रेटिना अलग है, तुम्हारा बोन मैरो अलग है, तुम्हारे सेल का डिस्क्रिप्शन अलग है, तुम्हारा DNA अलग है, और तुम इतने डिफरेंट हो मेरे से. तो फिर अपने आप को पहचानो और बोलो मैं अलग हूं और मैं इतना ब्यूटीफुल हूं कि मैं अपने आप में अलग हूं, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं. सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार.
And that's what you have to enjoy and love yourself. So just love yourself. Stop hating yourself. Stop comparing yourself. And you will be a wonderful person. And just keep growing every day. Thank you. एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज पॉडकास्ट लेते हुए मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि मैं पॉडकास्ट ले रहा था. मैं खुद चुका था कि सर जो भी बता रहे थे कुछ मेरे को भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला है. तो So that's all from our side. और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ के रिगार्डिंग तो Thank you so much, everyone. Thank you guys. You did a wonderful job, and I must compliment that you guys are fantastic. Keep doing amazing in life. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much, sir.